Hi, good morning, good afternoon, good evening. How are you all? I hope that you are doing very fantastic. So, I welcome you all on my channel, The Commerce for All Academy. I am your coach and mentor, Keshav Jha, and I am here to teach you. Basically, I am here to evolve yourself in spoken English. So, I am not here to teach you anything. I know that you know the language, you know it very well, but क्या है कि आप लोगों को बोलने में दिक्कत हो रही है. To eradicate that problem, I am here. So, basically in first session I have taught you about the sentence forming, that in which way you can form the sentences, that easily you have to practice on that for taking the 5 words of your daily routine. So, have you did that? Have you did that? Or you haven't yet? See, before moving to the second session, आपको second session में move करने से पहले you must have a complete command over the first session, that whatever I told you, that you must have a full command over that. Okay sir, चलिए जी. तो whatever you see, the thing which you haven't started, haven't done yet, it doesn't mean that you are not going to do that. So, basically it is a kind of process. So, I am setting your mentality in English, and English is not a big deal. English is a very funny language. Seriously, English is a very funny language. Till when you start speaking, then you will come to know कि कितना easy था यार ये, हम लोग ऐसे ही havoc बना के बैठे. But seriously, you guys are making havoc of it कि यार मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, because reason being that कि आप बोल नहीं पा रहे हो, that you haven't tried yet. That's the problem. And when you have decided once, then you are in the very right place. And one more request from you, that if you haven't subscribed my channel, then please do the same. And like the video if you want. See, so let's move further. So sir, what we are going to study in today's class, this is second session. Before moving to this start my second session, I am here with some tips. Sir, which tips? I am here with the 5 tips. Along with that, what you need to do, you have to work on these 5 tips too, which will alternatively improve your English in a better manner, in a very good speed. Sir, good speed का क्या मतलब है? मतलब जो काम आपको करने में हो सकता है महीने 2 महीने लग जाए, वो काम आपके 15 दिन 10 दिन में होने वाला है. Sir, you have written that it's a 10 days course. Definitely it's a 10 days course, but this 10 days course for them जिनको कि इंग्लिश समझ में आता है, दे कैन राइट इंग्लिश, दे कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, तो उनको क्या होती है, दे गॉट हेजिटेटेड एंड दे जस्ट वर्ड्स डजंट कम आउट फ्रॉम देम. तो उनके लिए बेसिकली 10 दिन है. अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपके लिए भी 10 दिन ही है. बट द थिंग इज दैट you have to complete one session in one day. It will require lots of hard work, because there is no another way to key to success except hard work के अलावा कोई दूसरा सक्सेस का की नहीं होता है. So I am here with the 5 tips which alternatively going to improve your thinking power. Basically I am here to change your mindset. I know that you know English. I know that you know English seriously, and you start also believing that. आप भी अपने आप में ये विश्वास करना शुरू करो कि हाँ, मुझे इंग्लिश आता है. I can speak. आप ये बिलीव करना शुरू करो. फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीविंग इन योर सेल्फ. टिल द टाइम यू विल नॉट बिलीव इन योर सेल्फ, तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी दोस्तों. या डेफिनेटली यू विल फेस लिल प्रॉब्लम, कि जब तक आप खुद में बिलीव नहीं करोगे दैट आई कैन स्पीक, तब तक मैं क्या, आपको दुनिया में कोई इंसान आपसे कुछ भी नहीं बुलवा सकता. इंग्लिश तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है. आप यार कुछ भी मराठी, मलयालम, जो भी सीखना चाहें, स्पेनिश, फ्रेंच, ईच एंड एवरी लैंग्वेज single rule applied, that first of all believe yourself that you can speak that language. लैंग्वेज क्या है यार, हम आपस में बात करते हैं, दैट इज इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, कि आपको मुझे अपनी बात समझानी है, तो इसके लिए क्या है, ये लैंग्वेज ज़रूरी है बेसिकली. तो लैंग्वेज किस लिए ज़रूरी होता है, जैसे कि जब बच्चा होता है तो सबसे पहले मामा या पापा बोलना शुरू करता है. वो क्यों शुरू करता है मामा पापा बोलना, वो ऐसे भी तो रह सकता है, नहीं, उसको अपनी बात उसके मामा पापा या फिर दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी सब तक पहुंचानी है. टू उनको क्या करना है, उस तक उसे
अपनी बात पहुंचानी है, इसलिए लैंग्वेज जरूरी है। आपको बेसिकली अपनी बात पहुंचाने के लिए लैंग्वेज चाहिए। ओके, चलिए, तो बिफोर वेस्टिंग द टाइम, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स मूव टू दी आर 5 steps. This is the golden steps. This is the golden 5 steps. It's not only the 5 steps, these are the golden 5 steps, which is ultimately going to improve your English in such a manner, seriously guys, that you will be amazed. What you need to do? You have to practice on this. See, I told you that you need to practice by taking the 5 verbs, making the sentences or in each and every tense, 4 parts and 5 types of sentences: affirmative, negative, interrogative and WH sentences. Don't forget that for a single day. Till the time your mindset doesn't change, just start repeating this again and again. And one thing I have also told you, मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको. What's I have told you that guys, you need to read out loudly. Seriously, you need to read out loudly. Till the time you will not read out loudly, confidence नहीं आएगा. And you know, I just want to tell you one more thing. Never tell you in life that you are nervous. When it's like that, your heart beating fast, and when some of the interviews you are going to face, or each and every place, even in exams, you can apply this rule. It's everywhere. सर कैसे? बच्चे नर्वस की जगह पे ना आप, और whatsoever is watching my videos, नर्वस की जगह पे आप ये अपने आप को बोलो that I am feeling excited. There is a difference between nervous and excited, and you will feel कि अगर आप नर्वस की जैसे एक्साइटेड बोलोगे ना, these are both are the same circumstances, कि जहाँ पे क्या होता है कि आपको घबराहट महसूस होती है. एक्साइटमेंट में भी क्या होती है, घबराहट होती है. नर्वसनेस में भी क्या होती है, घबराहट होती है. बट द थिंग इज दैट एक्साइटमेंट इज अ पॉजिटिव थिंकिंग एंड नर्वस इज अ नेगेटिव थिंकिंग. सो डोंट गेट नर्वस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. जस्ट फोकस दैट यू आर फीलिंग एक्साइटेड, just tell to yourself, even you are facing anything in your life, just feel excited. If any life throws you any problem onto you, you say that I am excited to face that, I am excited to face that, I am excited to face that. Just repeat this chanting. It's a basic a kind of chanting. सर चैंटिंग मतलब ये समझिए मंत्र पढ़ना होता है ना, किसी चीज़ को दोबारा दोहराना. इट इज़ दैट प्रोसेस. सो स्टॉप गेटिंग नर्वस, स्टार्ट फीलिंग एक्साइटेड. आप नर्वस नहीं फील करके आप हमेशा एक्साइटमेंट फील करो कि अरे कोई नई चीज़ सीखने के लिए जा रहा है, कुछ नया इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है. दैट इज़ वेल, सी इफ़ लाइफ पुट्स यू इन ए प्रॉब्लम, ही ऑल्सो गिव्स ए सॉल्यूशन. और अगर आप किसी प्रॉब्लम से निकल के आगे बढ़ते हैं ना, तो आप एक कदम अपनी लाइफ में आगे ऊपर सीढ़ी की तरफ चढ़ते हैं. जो सक्सेस की सीढ़ी है उसकी तरफ एक कदम आप और बढ़ाते हैं. ईच एंड एवरी टाइम यू फील नर्वस, just say yourself that you are feeling excited. Even it's you can apply this thing while playing, while giving the interviews, while moving to somewhere, while that bungee. Do you know bungee jumping? Bungee jumping क्या होती है बेसिकली मैं बताता हूँ आपको. पहाड़ से ना रस्सी बांध के कूदा जाता है नीचे बिल्कुल गहराई में. दैट इज बंजी जंपिंग बेसिकली. आपको पता है कि रस्सी लगी हुई पीछे, बट फिर भी आप कूदते हो, बट फिर भी डर सा लगा रहता है. तो जो जिसको डर लगा रहता है, जो नर्वस होता रहता है, वो क्या होता है समटाइम्स उसके साथ दिक्कत भी आ जाती है. बट जो एक्साइटेड फील करता है उसके साथ दिक्कत नहीं आती सीरियसली. सो स्टॉप फीलिंग नर्वस, स्टार्ट फीलिंग एक्साइटेड. ओके सर. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस 5 गोल्डन रूल्स बिफोर स्टार्टिंग माई सेशन, टुडे सेशन. सर ये आज का सेशन का पार्ट नहीं, नो, दिस इज टुडे सेशन पार्ट. बट these are the tips, these are the golden tips by which you can improve your spoken and start speaking as early as possible. Sir, what are those five steps? So first of all, start enjoying the language. Sir, what do you mean by enjoying the language? See, let me tell you, let me know one thing. आप मुझे एक चीज़ बताओ. क्या सर आप मुझे एक चीज़ ये बताओ कि बच्चे एक बात बताइए, लाइफ में खाना खाने के लिए तो दाल रोटी भी काफ़ी है. दाल रोटी इज सफिशिएंट फूड, इजंट दैट? इज इट? है ना, बिल्कुल है. बट फिर भी हमारा पिज़्ज़ा खाने का क्या मतलब पिज़्ज़ा हम क्यों खाते हैं? वाई वी ईट पिज़्ज़ा? वाई स्पेंड सो मच मनी, $700
फॉर ए सिंगल पैन ऑफ पिज़्ज़ा, वाई यू स्पेंड दैट? इवन 700 रुपये में तो एक महीने का, अगर आप सिंगल पर्सन 700 रुपये में तो एक महीने का दाल रोटी के बराबर आपको राशन आ जाएगा. देन फॉर ए सिंगल टाइम वाई यू स्पेंड दैट मच? सर मज़ा आ गया. anything whatever you do, that is what you are doing for enjoyment basically. So till the time you will not enjoy the language, how could you able to speak? Because your native language is not English. हमारी और आपकी क्या है, मातृभाषा इंग्लिश नहीं है, ठीक है. तो क्या है, अगर हम उस चीज़ को एंजॉय करेंगे ना, इफ़ यू विल स्टार्ट एंजॉइंग दैट लैंग्वेज, तो क्या होगा, वो बहुत जल्दी मेरे अंदर क्या होगा, वो समाएगा. जैसे आप पिज़्ज़ा खाते हो ना, अरे यार मज़ा आ गया सीरियसली, वैसे आप इंग्लिश से ना मज़ा लेना शुरू करो. टिल द टाइम यू विल नॉट एंजॉय, तो यार थोड़ा सा जैसे ही बोरियत लगेगी ना किसी चीज़ में, क्या होता है, अगर कोई चीज़ में किसी चीज़ में बोरियत लगती है आपको, तो आप एक दिन तो करोगे, 2 दिन करोगे, बट मूविंग फॉरवर्ड तीसरे चौथे 5वें दिन क्या होगा, आप वो चीज़ छोड़ दोगे. सीरियसली आप छोड़ दोगे. दैट्स ट्रू, दैट्स वेरी मच ट्रू. आप कितने भी डेडिकेटेड हो, आप कितना भी आपका पैशन हो, इफ़ यू विल नॉट एंजॉय दैट थिंग, यू आर गोइंग टू, आप क्या करने वाला से छोड़ने वाला, यू आर गोइंग टू क्विट दैट, यू विल नॉट. आप क्या होता है ना, ये हम एक हैबिट डेवलप कर लेते हैं, तो इन्जॉय करना बहुत ज़रूरी है. ओके सर, फाइन. सो इन्जॉय द लैंग्वेज. हाउ कैन यू इन्जॉय द लैंग्वेज? आप कैसे लैंग्वेज को इन्जॉय कर सकते हैं? आप ना वीडियो कंटेंट के थ्रू इन्जॉय कर सकते हैं. एंड this practice you need to do at least 15 minutes in a day, daily basis. 15 minutes, I'm not requiring that much of time. Or if you do 1 hour, then that's very fine. That's बहुत अच्छी बात है. अगर आप मिनिमम 15 मिनट, तो ये समझिए आपको ये करना ही करना है. 15 minutes you have to do this on a daily basis till the time you continue doing this lifetime. Because टिल द टाइम जैसे ही आपने सीखना बंद करा, लाइफ का मतलब ही खत्म हो जाता है. सो इट्स वेरी मच नेसेसरी दैट यू शुड एंजॉय द लैंग्वेज. फॉर एंजॉइंग द लैंग्वेज व्हाट यू नीड टू डू? सर मैं इंग्लिश मूवी देखना शुरू कर दूँ, मैं न्यूज़ देखना शुरू कर दूँ, आपको लगता है न्यूज़ में आप एंजॉय कर पाओगे? इंग्लिश मूवीज़ जो कि आपको समझ में नहीं, आपको लगता है एंजॉय कर पाओगे? सो स्टार्ट आप ऐसे वीडियो कॉन्टेंट से स्टार्ट करो जिसमें आपको मज़ा आए, मतलब चीज़ें समझ में आए. सर समझ में आने का मतलब है, आप बच्चों के कार्टून्स देख लो. सर लोग क्या कहेंगे, हम बड़े हो गए कार्टून देखेंगे. अरे व्हाट, अरे लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना, लोगों का तो काम है कहना. अगर लोग क्या कहेंगे ये भी आप ही सोचोगे, तो फिर वो क्या करेंगे? इसीलिए सबसे पहले लोगों का हबॉक दिमाग से हटाओ, और आपको जो अच्छा लगे, व्हाट एवर इंटरेस्ट यू डिराइव, जो भी जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट डिराइव होता है, गो फॉर दैट. ये दैट माइट बी द कार्टून हो सकते हैं. कार्टून सर कौन से? बच्चों के जो होते हैं ना, उसमें इजी लैंग्वेजेस यूज़ होते हैं. कन्वर्सेशन जो बच्चे करते रहते हैं ना, इंग्लिश कार्टून्स, उसमें बहुत इजी लैंग्वेज यूज़ होता है, वो बच्चों के लिए बना होता है. तो आप ये समझिए कि आप बचपन से उस चीज़ को जीना शुरू कर रहे हैं. फिर कार्टून से आप वो क्या कहते हैं, दूसरे वीडियोज़ पर आप धीरे धीरे लेवल अप करते हुए चले जाइए. तो उससे क्या होगा ना, कार्टून देखने से ये होगा कि जो मेरा सेकंड पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी. वीडियो देखने से. सर सेकंड थिंग, आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट. आपका इंटरेस्ट मोटिवेशन में है, देन यू कैन गो फॉर द मोटिवेशनल स्पीकर्स. आपका इंटरेस्ट किसी क्या कहते हैं इंग्लिश शोज़ में है, तो आप वो देख सकते हैं. दैट whatever जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, फनी वीडियोज़ में इंटरेस्ट है, दैट मेक यू लाफ, या जिसमें भी आपको मज़ा आया ना, वो कंटेंट देखो, आप यूट्यूब पे अवेलेबल है. एंड थर्ड, द मोस्ट व्हाट आई अप्लाइड ऑन माई सेल्फ ऑल्सो, दैट आई लव क्रिकेट टू मच, बट द टाइम व्हेन आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश एट दैट टाइम टू, व्हाट आई डू, I just love to listen commentary in English, and those commentators who are from the English, मतलब Indian origin से क्या मतलब है सर? Indian origin से ये मतलब है कि मेरा जो ये सब आज की डेट में समझ लीजिए, राहुल द्रविड़ हो गए, हर्षा भोगले इज़ अ ब्रिलियंट स्पीकर. आप उसको सुनिए, हर्षा भोगले, दैट हाउ ही इज़ फ्रेमिंग द सेंटेंसेस. नहीं तो आपको मज़ा आना शुरू होगा, यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट. और आप उस चीज़ को ना वो कीजिए, रिपीट करने की कोशिश कीजिए, पीछे आप रिपीट करने की कोशिश कीजिए.
what I do in my initial days when I listening the commentary, जब मैं commentary सुनता था तो मैं क्या करता था, whatever Harsha Bhogle, Rahul Dravid, whatsoever the English speaker is saying, I try to repeat that like the Sachin has taken class and just McGrath started running, then moved to the stump and bowl at the speed of 150 kilometers per hour. It's a bounce and a Sachin ducks. तो इस तरीके से क्या होगा ना, मतलब आप कमेंट्री सुनिए, the much you listen. और एक चीज़ यार, हमेशा ये चीज़ याद रखिए, अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर. सो इसीलिए मेरा कहने का मतलब आप कमेंट्री सुनिए. अगर आपका इंटरेस्ट है तो क्रिकेट में, अगर नहीं है तो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, व्हाटसएवर. कमेंट्री डजंट मीन ओनली फॉर द क्रिकेट ओनली. कमेंट्री आपको फुटबॉल की भी होती है, कमेंट्री टेनिस की भी होती है, वॉट एवर गेम. इवन कमेंट्री आपको लाइव शोज की भी कमेंट्री होती है. तो आप कमेंट्री सुनिए. ओके, सो इन दिस वे you are going to enjoy that language. Sir, second one is that you can listen radio. Sir, radio, yeah, definitely you can listen. N number of channels available out there, English channels, radio English channels, and podcast is basically it's a kind of something that ये समझिए स्टोरी टेलिंग टाइप की चीज़ होती है, तो वो भी आप सुनिए. इफ़ यू लव टू लिसन दैट, आप n नंबर ऑफ पॉडकास्ट के आज के स्टोरी टेल अवेलेबल है. फिर से आपको क्या कहते हैं, ये 2-3 और प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कि आज की डेट में क्या है कि स्टोरी कहानी भी, आपको बुक्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. दैट इज़ अवेलेबल इन क्या है, ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल है. तो लिसन दैट ऑडियो फॉर्मेट बेसिकली, जैसे कि महात्मा गांधी की कहानी है या फिर जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, whoever इज योर इंस्पिरेशन, आप उसका पॉडकास्ट सुनने की कोशिश कीजिए, उसके बारे में पढ़ने की कोशिश कीजिए. एंड डेफिनेटली आपको कोशिश किस में करना है, दैट शुड बी इन इंग्लिश. दिस इज द अनदर ऑप्शन. थर्ड वन, सम पीपल डजेंट एन्जॉय दैट कि मुझे जो है ना वीडियो देखने में इंटरेस्ट है, ना ही मुझे पॉडकास्ट सुनने में इंटरेस्ट है. देन दैट्स फाइन, यू विल स्टार्ट रीडिंग. सर इस रीडिंग तो मुझे समझ में नहीं आता है. अरे बच्चे, आपको समझ में नहीं आता है, स्टार्ट रीडिंग सेकंड स्टैंडर्ड बुक, फर्स्ट स्टैंडर्ड बुक. आज के बच्चों के आते हैं ना, CBSE के बच्चों के पहली कक्षा के बुक लेकर के आइए, दूसरी कक्षा के बुक लेकर के वो पढ़ना शुरू कीजिए. आप उसमें तो समझ में आएगा आपको, डेफिनेटली उसमें समझ में आएगा. थर्स्टी क्रो की स्टोरी, मतलब व्हाट्सोएवर या आप रीडिंग स्टार्ट कीजिए. अगर आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है तो 5th स्टैंडर्ड की बुक लेकर के आइए आप. अगर उससे ज़्यादा समझ में आता है तो 10th स्टैंडर्ड की बुक लेके आइए आप, उसको पढ़िए, उसमें स्टोरीज पढ़िए आप. तो यू कैन डू रीडिंग एज वेल. ओके सर. सेकेंड, ऑब्जर्वेशन इन द सेंस कि वाइल जब आप ये एंजॉय कर रहे हो लैंग्वेज को, तो ऑब्जर्व कीजिए. सर व्हाट वी नीड टू ऑब्जर्व, यू नीड टू ऑब्जर्व दैट आप किसी चीज़ को किस तरीके से सोचते हैं, आप किसी चीज़ को किस तरीके से सोचते हैं और आप कैसे बोलना चाहते हैं. एंड सी हाउ दे इन दैट वीडियो पीपल आर डिलीवरिंग दोज सेंटेंसेस. आप ये देखिए कैसे वो क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं वो सेंटेंस, कैसे वो आपस में किसी चीज़ को बोलने के लिए कौन सा सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, कैसे सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. सो यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दैट. ओके सर प्रोनाउंसिएशन, इससे क्या होगा, आपकी प्रोनाउंसिएशन भी इंप्रूव होगी. सर प्रोनाउंसिएशन हाउ इट विल इंप्रूव, बेसिकली व्हेन यू लिसन द पॉडकास्ट और व्हेन यू रीड समथिंग, व्हेन यू enjoy the videos, at that time you will see that how the speaker is speaking, and I told you that you have to repeat behind him. आपको उसके पीछे रिपीट करना है, आपको बार बार वो रिसाइट करना है, प्रैक्टिस करनी है. तो बेसिकली क्या होगा कि जैसे कि कोई शब्द आप बोलते हैं, जैसे शेड्यूल बोलते हैं आप जैसे देखें तो शेड्यूल आपका स्केड्यूल में बदल जाएगा. आप ऑफन बोलते हैं, आपका वो ऑफ्टन में बदल जाएगा. आप मान लीजिए आप टाइम बोलते हैं, आपका टाइम जो है वो टाइम में बदल जाएगा. टी यू विल फोकस ऑन स्टार्टिंग टी एफ. दिस काइंड ऑफ वर्ड आपको क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन में इंप्रूव करने वाला है. सो सी बेसिकली क्या करना, आपको ऑब्जर्व करना है एंड यू हैव टू थिंक, यू हैव टू रिमेंबर व्हेन यू आर स्पीकिंग दो सेंटेंसेस, जब आप वो सेंटेंस बोल रहे थे व्हाट मिस्टेक्स यू आर कमिटिंग, तो आपको उस पर फोकस करना है. तो उससे क्या होगा, आपकी प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होगी. एंड स्पॉट योर मिस्टेक्स, अपनी मिस्टेक्स को आप देखिए कि आप जब ये सेंटेंस बना रहे थे तो उस टाइम पे आप कौन कौन सी गलतियां कर रहे थे. आप उस मिस्टेक को स्पॉट कीजिए, ढूंढिए, निकालिए और उसके बाद 10 टाइम्स
जो आपने सेंटेंस जो आप बोल रहे थे, या वुड यू प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, आप मतलब ये नहीं बोल के आप मान लीजिए कुछ और बोल रहे थे, फॉर एन एग्जाम्पल एक्सक्यूज़ मी, सीधा सीधा आप बोल रहे थे एक्सक्यूज़ मी, लेकिन वुड यू प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी इज़ अ काइंड ऑफ कि आप सामने वाले को एक्सक्यूज़ करने के लिए भी कह रहे हो और उससे जो है थोड़ा सा सम्मान भी दे रहे हो, तो वो ना बहुत ही अच्छा लगता है। वुड यू प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, कहना है बाय यू ड्रिंक, ये सारी चीज़ें जो है ना बेसिकली वो क्या करेंगे, आपको आपके लैंग्वेज को सुधारेंगे। और लेट मी बाय यू ड्रिंक, तो कहना है बाय यू ड्रिंक इज़ ए काइंड ऑफ दैट यू आर डूइंग असर्सन ऑल्सो, आप क्या कर रहे हैं, आप असर्सन मतलब आप अपना पॉजिटिव थॉट उसके ऊपर रख रहे हैं, बट उसके साथ क्या है, एक भाव जुड़ा हुआ है, भावना भी जुड़ी हुई है, ठीक है, तो उसको भी सुन के ये चीज़ अच्छी लगेगी। तो आप वो मिस्टेक्स स्पॉट कीजिए और उसको आप चेंज कीजिए, बेसिकली अपनी मिस्टेक्स को चेंज सर कैसे करेंगे, चेंज आपको ऐसे करना है कि जो आपने सुना है उसको 10 बार 20 बार 25 बार रिपीट कीजिए। किसी फ्रेंड को बोलिए, अपने सिस्टर को बोलिए, अपने भाई को बोलिए, अपनी बहन को बोलिए, अपनी वाइफ को बोलिए, टू हुम यू वांट टू डिलीवर दैट, वो समझे नहीं समझे दैट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम, यू जस्ट डिलीवर दैट। आप अपनी प्रैक्टिस जरूर रखिए। सर पुट योर ईगो असाइड, पुट योर ईगो असाइड का मतलब ये है कि इफ़ समवन मेक लाफ ऑफ योर स्पोकन, मतलब सर मतलब ये बच्चे कि कोई अगर बंदा है या जिसके सामने आप इंग्लिश बोल रहे हैं, वो कह रहा है अरे हा क्या बोल रहा है यार, गलत सही, हाँ हक, ऐसे इंग्लिश बोलते हैं। एक्चुअली ही इज़ नॉट मेकिंग फन ऑफ योर सेल्फ, ही इज़ मेकिंग फन ऑफ हिमसेल्फ। वो अपने अंदर जो उसकी गलतियां हैं ना वो छुपाने के लिए आपके साथ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। सो डोंट आप उसको बहकावे मारने की ज़रूरत नहीं और डिमोटिवेट होने की भी ज़रूरत भी नहीं है। आपको क्या करना है, अरे छोड़ो यार कोई बात नहीं, यू जस्ट मेक इट अ हैबिट कि आपको इन सब चीज़ों से अफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक लाइन में आपको बताना चाहता हूँ, एज टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो दैट आई एम मोटिवेशनल स्पीकर टू व्हाट, ओपन टू एवरीथिंग मीन्स आप सब कुछ के लिए तैयार रहिए, ओपन टू एवरीथिंग एंड अटैच टू नथिंग। अटैच टू नथिंग का मीन्स है अफेक्ट होना बंद कीजिए सबसे, दूसरे ने क्या बोला, दूसरे की वजह से क्या हुआ, दूसरा तीसरा, यार ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं करने वाला है। नो वन इज गोइंग टू पे योर टेलीफोन बिल्स, यू हैव टू पे योर रेंट, यू हैव टू पे योर टेलीफोन बिल्स, यू हैव टू पे योर चिल्ड्रंस स्कूल फी, यू हैव टू पे एंड यू हैव टू मैनेज योर लाइफ। अगर आपको फरारी खरीदनी है तो आप ही खरीदिए, कोई आपको गिफ्ट नहीं करने वाला है। टिल द टाइम आप कुछ ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं करते कि आपको फरारी गिफ्ट में मिले, और लेकिन आप खुद से खरीद सकते हैं। आपको लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, देन नो वन इज गोइंग टू बाय फॉर यू दिस लैम्बोर्गिनी, आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी, यू हैव टू। देन सर इसमें क्या होगा, इसमें आपको अपनी ईगो का असाइड रखना। अरे किसी ने कुछ भी बोल दिया, वॉट एवर योर एज इज, अगर कोई बच्चा ही बोल देता है तो छोड़ो, एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, कोई बात नहीं, दैट मीन्स नथिंग हैपन, नथिंग हैपन। What you need to do, you have to again focus on what you are doing. Okay sir, then come clarity of thought. Sir clarity of thought का मतलब ये कि आपको इंग्लिश बोलना है, ये थाउट आपके दिमाग में, ये विचार आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इट विल नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। सर ये तो समटाइम्स हो सकता है ना कि सब्जेक्ट्स बीच में अदर सब्जेक्ट्स कैन जस्ट अट्रैक्ट माई अटेंशन, या वो क्या करें मेरे अटेंशन को अट्रैक्ट कर ले। दैट्स ट्रू, दैट माइट बी पॉसिबल, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि आपके थाउट को क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, बट यू मस्ट हैव अ क्लैरिटी, एंड फॉर क्लैरिटी ऑफ द थाउट यू नीड टू मेडिटेट। सर मेडिटेशन के क्या मतलब इंग्लिश से, बच्चे या आप जो भी हैं, मेडिटेशन इज सच ए पावरफुल थिंग, सच ए पावरफुल थिंग which will change your life drastically, and you will keep focused on whatever you are saying. See, I am not that much good at English. I'm not having that much vocabulary. Okay, but what I have a clarity of thought that I have to speak English. I have a clarity of thought that I will speak English. I have a clarity of thought that I have to deliver something to this universe. I have to सर्व दिस यूनिवर्स। तो मेरे मन में क्या है, ये थॉट मेरा बिल्कुल क्लियर है, विचार बहुत ही ज़्यादा क्लियर था। जिस दिन मैंने स्टार्ट करा था उसी दिन मेरा क्लियर था कि मुझे ये काम करना है। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट के लिए क्या है, आप मेडिटेट कीजिए तो आप डिस्टर्ब होना बंद हो जाएंगे। जैसे आप डिस्टर्ब होना बंद हो जाएंगे,
इवेंचुअली धीरे 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 क्या होगा, आप फोकस्ड हो जाएंगे। एट वंस यू गेट फोकस्ड, क्या होगा, जैसे ही आप फोकस हो गए ना, वैसे चीज़ें अपने आप ही आसान होती चली जाएंगी। सीरियसली माय डियर फ्रेंड्स, द टाइम यू गेट फोकस्ड ऑन टू एनीथिंग, द थिंग्स विल गो स्मूथ, द थिंग्स स्टार्ट कमिंग टू योर वेज। डिमांड करना बंद कीजिए, सर्व करना शुरू कीजिए, इट विल अल्टीमेटली हेल्प यू वेरी मच। ओके, मेडिटेशन कीजिए डेली। सर मेडिटेशन नहीं हो पाता है, 10 मिनट से शुरू कीजिए, 5 मिनट से शुरू कीजिए, 7 मिनट से शुरू कीजिए, 15 मिनट से शुरू कीजिए। सर वी हैव सीन एन नंबर ऑफ वीडियोज ओवर द मेडिटेशन बट नहीं हो पाता है। अरे एक काम कीजिए ना, आप कहीं पे भी शांति जगह पे बैठ जाइए, आप कहीं पे भी बैठ जाइए आप, एंड जस्ट स्टार्ट। सर वो कहते हैं कि सांस लो, सांस, यू हैव टू फोकस ऑन योर ब्रेथ, नहीं हो पाएगा सीरियसली, एंड दैट माई 100% गारंटी कि नहीं हो पाएगा। स्टार्टिंग में दिमाग में थाउट्स आएंगे ही, आप मतलब बैठो आराम शांति से, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलेंगी, बट उसको दूर करने के लिए एक उपाय है, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द रिलीजन। आप ओम का यूज़ कीजिए, ओम का बस आप यूज़ कीजिए। ओ पे आपको 75% टाइम डिवोट करना है, म पे 25% टाइम डिवोट करना है। तो इस तरीके से आप मेडिटेशन कर सकते हैं। एंड लास्टली, सबसे पहले ना इसको उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना बंद कीजिए कि अरे यार मतलब मेरे घर के बड़े बूढ़े बोलेंगे मुझे कि अरे ये तो इंग्लिश भी नहीं बोल सकता। अरे छोड़ो ना, इंग्लिश इज जस्ट ए लैंग्वेज यार, इंग्लिश इज जस्ट ए लैंग्वेज। स्टॉप हैबॉक बनाना बंद कीजिए। कहने के मतलब है हैबॉक बनाना बंद कीजिए। जर्मनी में लोग जर्मन बोलते हैं, फ्रांस में लोग फ्रेंच बोलते हैं, इंडिया में हमारे पास भी तो लैंग्वेज है, साउथ इंडियन लैंग्वेज है, मराठी है, देन गुजराती है, देन पंजाबी है, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, हिंदी है बेसिकली, और आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है, मैथिली है, संस्कृत है, तो वो सारे लैंग्वेजेस तो हैं। बेसिकली आप इसको इतना ज़्यादा हैबॉक बनाना बंद कीजिए, इतनी इंपॉर्टेंस देना बंद कीजिए कि अगर आप इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो लाइफ में बहुत कुछ नहीं होएगा। अरे सब कुछ होएगा, इंग्लिश इज जस्ट ए लैंग्वेज। सो टेक इट ईजी, टेक इट ईजी, टेक इट ईजी, ईजी लीजिए इसको। आप बहुत ज़्यादा हैबॉक बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हैबॉक बनेगा। अगर आप इसको बहुत ईजी लेते हैं तो बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटा सा ये चीज़ करना आपको, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी बंद कीजिए आप। अगर मान लीजिए आप बोलते बोलते कहीं पटक जाते हैं, वाइल स्पीकिंग, क्या हो कि आप जैसे बोल रहे हैं, बोलते बोलते क्या हो गया कि आप कहीं पटक जाए, तो आप हिंदी यूज़ कीजिए ना उस टाइम पर, जो भी आपकी लैंग्वेज है, जो भी आपका बोलने का वहाँ पे वॉट एवर दी नेटिव लैंग्वेज ऑफ दैट प्लेस, आप वो लैंग्वेज यूज़ कीजिए जो सामने वाले को समझ में आए, तो दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंग्लिश के साथ हिंदी मिक्स करेंगे तो दैट इज़ कूल, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बट करना क्या है, you need to follow these 5 steps basically, which will ultimately, these are the golden 5 steps which will ultimately improve your English spoken in such a manner कि आप मतलब आप बस 5 दिन करके देखिए यार, 6ठे दिन you will feel, just do it for 5 days, minimum 15 minutes and maximum an hour, okay। 1 घंटा आपको 1 घंटा आपको करना है ये, ओके सर, ठीक है। अगर आपको ये नोट करना है तो आप 1 मिनट में नोट कर लीजिए। देन विल स्टार्ट बिल्डिंग, आपके माइंडसेट को बिल्ड करना शुरू करें फिर से हम। चलिए जी, आज ये हमारा सेकंड सेशन है, एक सेशन हो चुका था, टुडे इज सेकंड सेशन। तो आप थोड़ा सा फोकस कीजिए। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, या जो भी देख रहे हैं वीडियोस को, दैट्स माय चैलेंज, इफ़ यू फॉलो वॉट एवर आई एम सेइंग इट टू यू, आप देखिए कितना ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट होने वाली है, ओके। चलिए लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली फर्स्ट आई टोल्ड यू दैट हाउ टू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस, देन आई गिवन यू 5 गोल्डन स्टेप्स कि आपको इंग्लिश कैसे इंप्रूव करनी है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्या करना आपको करना ये है कि आपको ना लिखना है। सर क्या लिखना है हमें? आपको ऐसे राइटिंग करनी है, सीरियसली ऐसे राइटिंग। सर इससे क्या होगा? इससे ये होगा
यू माइट स्टक फॉर द वर्ड्स, यू माइट स्टक फॉर द वर्ड्स, आप वर्ड्स के लिए आप स्टक होंगे। यू माइट मिस दी वोकेबुलरी, आपकी वोकेबुलरी में उतने ज़्यादा वर्ड्स नहीं होंगे। तो डिक्शनरी रीड करने, डिक्शनरी मतलब याद करने से अच्छा है कि आप ऐसी राइटिंग स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट राइटिंग 2 पेजेस डेली। सर वो छोड़ दें, अरे मैंने आपको पहले ही बताया है, फिर बता रहा हूँ, आपको वर्ब फॉर्म्स वाला अभी नहीं छोड़ना है, अगर आपको आता है फिर भी नहीं आता है, फिर भी एटलीस्ट यू हैव टू कंटिन्यू फॉर द 5 डेज मिनिमम फॉर द 5 डेज। अगर आपको इंग्लिश लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता था सेंटेंस फॉर्मिंग, उनके लिए तो भाई साहब वो समझ लीजिए ग्रंथ है वो, बेसिकली वो तो समझ लीजिए, वो तो आपको करना ही करना है। उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव फॉरवर्ड कीजिए। आप सर किस पे ऐसे लिखें और कैसे ऐसे लिखें, हमें ऐसे लिखना नहीं आता, कोई बात नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे देखिए 2 पेज आपको डेली लिखना है। सर कैसे लिखेंगे, आपके इंटरेस्ट का एक टॉपिक लीजिए। देखिए पॉजिटिव टॉपिक शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। आप बस ये सोचिए कि मतलब पॉजिटिव, हमेशा बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए आप। तो ऐसे लिखिए आप, ऐसे सर किस पे लिखें हम, आपको काऊ पे ऐसे लिख सकते हैं, डॉग पे ऐसे लिख सकते हैं, हाँ ये लिख सकते हैं आप, इंडिया के ऊपर ऐसे लिख सकते हैं, माय विलेज के ऊपर ऐसे लिख सकते हैं, गंगा के ऊपर ऐसे लिख सकते हैं, योर लॉर्ड, जो भी आपके भगवान हो, जिसको भी आप मानते हो, उनके ऊपर लिख सकते हैं ऐसे आप। इतनी तो नॉलेज होगी ना आपको, दैट मच आई नो, इतनी नॉलेज तो होगी आपको। तो आप 2 टॉपिक चूज़ कीजिए और ये भी आप कम से कम 5 डेज लिखिए, 5 डेज मिनिमम। स्टार्ट राइटिंग ऐसे फॉर 2 पेजेस डेली फॉर द 5 डेज कंटिन्यूसली। और इस देखिए देयर इज ए नो इफ एंड बट, देयर इज ए नो इफ एंड बट, इसमें इफ बट कुछ नहीं है कि अरे सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अरे एक बात बताइए, आप सो के उठा, आपने खाना छोड़ा क्या, नहीं छोड़ा ना। आपने जो भी काम करते हैं, हैव यू, आपने वो रोका, नहीं रोका ना, देन वाई यू स्टॉप दीज थिंग्स, ये भी तो आपके लिए उतना ही ज़रूरी है ना। अगर देखिए आपको अच्छा स्पीकर बनना है, आपको अच्छी इंग्लिश की नॉलेज लेनी है, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। यू मस्ट हैव टू डू दीज थिंग्स। ऐसे राइटिंग, सर आप एक काम कीजिए, ऐसे राइटिंग से आप एक काम कीजिए, अगर वैसे समझ में नहीं आता, ऐसे राइटिंग की बुक लेके आइए, ऐसे राइटिंग की बुक लेके आइए, ऐसे राइटिंग बुक। ये हार्डली आपको 75 और 100 बक्स में मिल जाएगी, और ₹100 में आपको मिल जाएगी, 75 रुपये में या 100 रुपये में आपको मिल जाएगी। बट डू रिमेंबर वन थिंग, ऐसे की जब आप बुक लेके आएंगे, दैट बुक शुड बी सेम, ऐसे शुड बी इन इंग्लिश as well as in हिंदी। सर उससे क्या होगा, उससे ये होगा, आप पहले ऐसे हिंदी में पढ़िए, स्टार्ट रीड ऐसे फर्स्ट इन हिंदी, देन देयर आफ्टर आप उसको इंग्लिश में पढ़िए। सर इससे क्या हो जाएगा, अरे अब देखिए तो सही, हिंदी में बहुत सारे हो सकते हैं कि ऐसे ऐसे वर्ड दिखेंगे आपको हिंदी के, आपको ऐसे ऐसे वर्ड दिखेंगे जिसमें कि आपको इंग्लिश पता नहीं होगा। क्या होगा इसका इंग्लिश नहीं पता होगा, इंग्लिश नॉट नोन, आपको नहीं पता होगा इंग्लिश नॉट नोन। अगर आपको इंग्लिश नहीं पता होगा तो आपको इसका इंग्लिश पता चलेगा, तो आपको एक सेंटेंस में एक इंग्लिश का वर्ड पता चलेगा, जिसको कि आपको क्या करना, लिख लेना, फिर उसके ऊपर आपको खुद से सेंटेंस बनानी है। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी भाई लोग, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, भाई बहन जो भी हैं आप, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। इफ़ यू वांट टू स्पीक तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें देयर इज ए नो चाबी, कोई सक्सेस की कोई चाबी नहीं होती। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। सिर्फ हार्ड वर्क जो है की टू, एंड हार्ड वर्क के साथ साथ सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं होता है, हार्ड वर्क से सिर्फ नहीं होता है, हार्ड वर्क रिक्वायर्स स्मार्ट वर्क ऑल्सो। आप वो काम कीजिए जो आपके लिए ज़रूरत हो। सिर्फ आप एक बात बताइए, आप राइटिंग रीडिंग करते तो बोलना आ जाएगा? नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। आपका थॉट प्रोसेस जब तक चेंज नहीं होगा तब तक नहीं आएगा। तो मैं तो आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो गया,
यू विल स्टार्ट स्पीकिंग, दैट्स इट, या सीरियसली दैट्स इट। तो आपने क्या करना है, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी वाले ऐसी बुक लेके आनी है, एक टॉपिक उठाना है, एक टॉपिक, एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस, एक टॉपिक उठाना है, एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस। उस टॉपिक को पहले आपको हिंदी में पढ़ना है, फिर उसको आपको इंग्लिश में पढ़ना है, फिर आपको हिंदी में पढ़ना है, फिर आपको इंग्लिश में पढ़ना है, फिर आपको हिंदी में पढ़ना है, फिर आपको इंग्लिश में पढ़ना है, 3 टाइम ये करना है। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है दोज वर्ड्स जो जिसका कि आपको हिंदी तो पता था, मतलब हिंदी में समझ आ गया, बट इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा था, इसकी क्या ट्रांसलेशन होगी वो समझ में नहीं आ रहा। तो जब चौथी बार आप हिंदी में पढ़ेंगे, 3 टाइम आपने पढ़ लिया हिंदी इंग्लिश, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, अब आप देखिए 3rd टाइम हिंदी में पढ़िए और उसको आप ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। सर ट्रांसलेशन विल हेल्प, सी ट्रांसलेशन विल हेल्प यू टू फ्रेम योर थॉट्स, ट्रांसलेशन विल हेल्प यू टू चेंज योर माइंड प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस चेंज करने में हेल्प करेगा। ट्रांसलेशन हैज़ नथिंग टू डू विद द स्पोकन। इफ़ यू विल स्टार्ट ट्रांसलेटिंग दिस द थिंग्स, तो क्या होगा, जैसे एक बात बताइए, डू यू थिंक दैट आई एम ट्रांसलेटिंग द वर्ड वाइल स्पीकिंग? जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको लग रहा है कि मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल से भी मैं ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ। वॉट एवर आई हैव टू स्पीक, आई वॉन्ट टू स्पीक, आई एम स्पीकिंग। जो भी मुझे बोलना है, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द ट्रांसलेशन, बिकॉज इतना फास्ट ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है। हाउ it developed by doing these things, and these are the things what I applied on myself that I am delivering to you। जो चीज़ें मैंने खुद के ऊपर अप्लाई करी है वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, because as I told you also that I am from Darbhanga, Bihar, and there are from village basically, and there are none of the people were speaking English at when I was till 12th, none of my friends were speaking English, none of them were talking in English। सो बट मुझे ये सारी चीज़ें करनी थी, तो मैंने ये चीज़ें करके यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं, दैट आई इवन डोंट नीड टू ट्रांसलेट एनीथिंग वाइल स्पीकिंग। इफ समवन आस्क मी देन ऑटोमेटिकली आंसर आई डिलीवर द आंसर इन इंग्लिश। इवन अगर मैं किसी वर्ड, मेरी वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैं किसी शब्द में फंस जाता हूँ, तो आई यूज़ हिंदी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अब वो 5 स्टेप बताया था ना, गोल्डन स्टेप्स, उसमें 5वां स्टेप बताया था ना, नॉट गिव, उतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है। बट क्या है कि आपको सीखने के लिए थोड़ा सा पैशन तो होना चाहिए, सनक होनी चाहिए आपके अंदर। यू नीड सनक। और दुनिया में जिन्होंने ये बहुत बड़ा काम करा है ना, उनके अंदर कुछ थी या नहीं थी, उनके अंदर सनक जरूर थी, उनके अंदर पैशन था, उनको ये जो काम करना था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपने लिख लिया, आप ऐसे लीजिए, उसको आप ट्रांसलेट कीजिए। आप देखिए कौन कौन से वर्ड का आपको इंग्लिश मतलब नहीं आ रहा, उसको आप सेपरेटली लिख लीजिए। एंड डोंट ट्राई टू पुट दैट अगेन इन हिंदी। आप सिर्फ और सिर्फ उसको इंग्लिश में यूज़ कीजिए, इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाइए, इंग्लिश में 5, 7, 10 कुछ भी ट्रांसलेशन बना दीजिए, कुछ भी एनीथिंग जो भी आपको समझ में आए वो लिख दीजिए। मिस्टेक्स होंगी, लेकिन मिस्टेक्स से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है यार। मिस्टेक्स तो उसी से होगी ना, अगर आप कोशिश करेंगे तो आपसे मिस्टेक होगी। जो कोशिश नहीं करेगा, आपका फ्रेंड है मान लीजिए, जो कोशिश नहीं करेगा, ही विल कमिट द मिस्टेक, नो ही विल नॉट, एंड ही विल नेवर। उससे गलतियां होंगी ही नहीं, सीरियसली उससे गलतियां नहीं होंगी। रीजन बीइंग, क्यों नहीं होंगी गलतियां क्योंकि उसने कोशिश नहीं करी। आप तो कोशिश करो तो आपसे गलतियां होंगी, दैट्स फाइन। कमिटिंग मिस्टेक है, दैट्स फाइन। अगर आप कोई नया लैंग्वेज सीखने के लिए जा रहे हो जो आपने 15, 17, 18, 30, 25, 35, 40 सालों में नहीं करा है, उसमें गलतियां हो रही हैं, तो डोंट बॉदर फॉर दैट, सीरियसली डोंट बॉदर फॉर दैट। यू जस्ट गो फॉर इट, रिपीट। एंड क्या होगा ना, जैसे आपको गलतियां दिखें आप उसको फिर सुधारिए। गलतियां कीजिए लेकिन फिर उसको सुधारिए, गलतियां कीजिए फिर उसको सुधारिए। आई रिमेंबर आई मेट वन पर्सन, वन ऑफ द गाइज, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। I remember one person. We both were at the same platform. Means same platform means same platform का मतलब था कि हम दोनों साथ में ही थे. We were studying at the same place. Our subject holding was same. Like and बहुत ज़्यादा क्या था, मतलब सिमिलरिटी थी हम दोनों में. रीज़न बीइंग कि हम दोनों अच्छे दोस्त थे, हमारे सब्जेक्ट की पकड़ भी बहुत ही अच्छी, उतनी ही अच्छी थी. बट एट द सेम टाइम जब वो इंग्लिश बोलता था, देन ही कमिट मिस्टेक एंड देन लेटर ऑन ही स्टॉप स्पीकिंग. क्यों? क्योंकि उससे गलतियाँ होती थी. ही ट्राइड 5, 6, 10 टाइम्स एंड ही स्टॉप. बट
In my case, I committed mistakes. I focused on that and I just क्या करा, मैंने अपनी मिस्टेक्स को ठीक करा और उसके बाद मैं आपके सामने हूँ। सी, अगर आपको लोगों के बीच में बोलना है, जैसे मैंने बताया ना कि सबसे पहले मैंने चीज़ बताई कि आप स्टॉप फीलिंग नर्वस, स्टार्ट फीलिंग एक्साइटेड। जब मैं क्लास लेने के लिए आता हूँ ना तो आई फील एक्साइटेड, आई डोंट फील नर्वस इन फ्रंट। सी, ये आपको बहुत ही सुन के अजीब लगेगा कि अकेले में बोलना, सारी चीज़ों थॉट प्रोसेस को अकेले में एक साथ रख करके बोलना, इट्स अ काइंड ऑफ डिफिकल्ट थिंग। सीरियसली गाइस, इट्स अ काइंड ऑफ डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या है कि आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या है कि बेसिकली बहुत सारे थॉट्स दिमाग में आएंगे, बट यू हैव टू कीप ऑन गोइंग। आपको कीप ऑन गोइंग करना मतलब बढ़ते रहना, बढ़ते रहना, बढ़ते रहना है। तो आपने क्या करा, इंग्लिश तो हिंदी कर लिया, ये सर हाँ जी सर कर लिया। अब आप उसी ऐसे को फिर से लिखिए। क्या सर क्या बात कर रहे हैं यार आप? हाँ सीरियसली बता रहा हूँ, उस ऐसे को फिर से लिखिए आप। जितना आपसे याद हुआ, जो भी आपसे याद हुआ, उस ऐसे को फिर से आप लिखिए। एटलीस्ट आप ये 2 पेज लिखिए ही लिखिए। इस तरीके से आपको 2 पेज लिखनी है, ठीक है। एंड चूज वन ऑफ योर फ्रेंड। ओके, वो नेक्स्ट सेशन बात करेंगे हम, ठीक है। ये आपने लिख लिया सर, इसके साथ साथ, इसके साथ साथ, इसके साथ साथ यू जस्ट कीप ऑन ट्रांसलेटिंग दी थिंग्स अराउंड यू, एनवायरनमेंट अराउंड यू। सर कैसे? आप कहीं पे भी बैठे हों, आप लोग किसी भी भाषा में बात कर रहे हो, लोग कुछ भी कह रहे हो, आपसे कह रहे हो नहीं कह रहे हो, यू जस्ट ट्राई टू कन्वर्ट दो सेंटेंसेज इन इंग्लिश। यू जस्ट ट्राई टू कन्वर्ट एंड प्रैक्टिस कीजिए। और इसके साथ साथ एक ना हमेशा आप एक छोटी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आती है हिंदी टू इंग्लिश वाली। कौन सी वाली? हिंदी टू इंग्लिश की डिक्शनरी आती है, हिंदी टू इंग्लिश। जो भी आपका लैंग्वेज हो, आपका लैंग्वेज पंजाबी हो, आपका लैंग्वेज मराठी हो, व्हाट्सएवर योर लैंग्वेज, मराठी टू इंग्लिश, पंजाबी टू इंग्लिश, जो भी है, आप हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी लेकर के आइए। और जब जब आपस में लोग बात कर रहे हो, अगर आप वहाँ से गुजर रहे हो या आप सुन रहे हो, तो स्टार्ट क्या करना आपको? स्टार्ट कन्वर्टिंग दो सेंटेंस इन इंग्लिश। आपको अपने आप में ही कन्वर्ट करना बेसिकली। और हाँ, एक चीज़ और, बिफोर स्लीप just translate your daily life in English and tell this story to your loved ones। सर इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये, सोने से पहले जब रात में आपने सारा काम खत्म कर लिया, ऑब्जर्वेशंस वगैरह जो आपको करनी हो तो करनी है, साथ के साथ उसको आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट भी करते रहना है। लेकिन रात में जब आप सोने के लिए आए, तो जब आप सुबह उठे, जब से वो कप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6:30, 5:30, whatsoever time, then I go for then I have my bath, then go for worship, then thereafter I have my breakfast, then worked on, today I worked on these things. So firstly at 9:30 I just logged on to my computer, then received a call. There was a meeting on GST ITC. I have attended that meeting. In that meeting there are 4 persons with me. जो भी चीज़ें आपके लाइफ में आज की डेट में हुई हैं, आपने बस पकड़ के आप कहीं गए, या फिर आप घर पे ही थे, आपने क्या खाया, आपने क्या पिया, ट्रांसलेट ईच एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश और सो जाइए आप। इतना बेनिफिट करेगा ना आपको, इतना ज़्यादा बेनिफिट करेगा ना आपको। इससे क्या होगा? आप बहुत सारे शब्द में अटकेंगे, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में आप अटकेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, जिस शब्द में आप अटके, याद रखिए उसको, अगली मॉर्निंग डिक्शनरी निकालिए, इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए, और फिर से कल की जो स्टोरी थी ना, फिर से अपने आप से कहिए। और अपने आप से नहीं तो अपनी वाइफ से कहिए, आपकी वाइफ नहीं है तो आपके बच्चे हैं तो बच्चे से कहिए, दोस्त से कहिए, भाई है भाई से कहिए, बहन है बहन से कहिए, पापा है पापा से कहिए, मम्मी है मम्मी है, कोई नहीं है तो अपने आप को रूम में लॉक कीजिए, अपने आप से कहिए। आप ये कोशिश करके देखिए यार,
आपने बहुत ट्रिक्स अपना लिए, बहुत क्लासेस ज्वाइन कर ली, बट स्टिल कुछ नहीं हो रहा है। अब होगा, जो नहीं हुआ है ना वो अब होगा, और ये बिल्कुल 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 होगा। ठीक है जी, ये दो चीज़ आपको करनी ही करनी है। आप देखिएगा ऑटोमेटिकली आपका थॉट प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगा, स्पोकन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, डे बाई डे, ईच पासिंग डे, ईच पासिंग डे बाई ईच पासिंग डे योर माइंड सेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। और अगर आपसे कोई इंग्लिश में सवाल पूछेगा तो यू डोंट नीड टू ट्रांसलेट, यू विल जस्ट आंसर हिज क्वेश्चन, हिज और हर क्वेश्चंस विदाउट गेटिंग हेजिटेटेड। वो सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, बट हाँ ये तो है कि आपका माइंड फ्रेम हो जाएगा। आप मतलब हो सकता है अभी क्या है कि आपने किसी ने आपसे ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो क्या होगा कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा देन इंटरनली योर माइंड से टेल यू दैट स्पीक दिस, बट इट माइट बी पॉसिबल दैट यू कुड नॉट डिलीवर दैट। हो सकता है ऐसा कि आप बोल नहीं पाए, आपका जवाब भी आ गया बट आप बोल नहीं पा रहे हैं। वो धीरे धीरे, जब मैंने बोला ना, जब मैं यहाँ पे सेशन 10, जिस दिन मैंने सेशन 10 लिख दिया एंड अगर आपने वो सेशन 10 कंप्लीट कर लिया, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। जैसे आपने हिंदी बोलना सीखा था, आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। And I am there for you guys because I have brought up myself from 0 to this level, then you can also do that. So that's why I came up with this course also, because बहुत बच्चों की स्कूलिंग तो पता नहीं, मतलब इंग्लिश मीडियम से हुई है और यहाँ से हुई है, वहाँ से हुई है, they have attended the classes. I have never attended any class, never attended any spoken class. No one was there to speak with me except one of my friend, जिसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करूँगा मैं, except one of my friend with whom we started speaking, started conversation with each other on a daily basis for an hour. वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊँगा कि आपको बाकी चीज़ें जो हैं कैसे करनी है, बट फॉर द टाइम बीइंग क्या करना आपको, वो सेंटेंस फ्रेमिंग आपको चालू रखनी है। उसके बाद ये जो मैंने 5 गोल्डन स्टेप्स बताए थे स्पोकन इम्प्रूव करने के, उस पर आपको काम करना है एटलीस्ट 15 to 1 hour। 15 मिनट तो बिल्कुल करना ही करना है। 15 मिनट में तो बाबू लाइफ आपकी है, सोचना आपको है, मुझे क्या, आई कैन ओनली गाइड यू। करना नहीं करना ये आपके बस की बात है, ठीक है। तो इसमें मैं आके आपको नहीं कर दूंगा, करना आपको खुद ही पड़ेगा। ओनली आई कैन गाइड यू दैट योर स्पोकन हाउ योर स्पोकन इज गोइंग टू improve and how you start speaking English। अगर आपको सही में इंग्लिश स्पोकन करना है, आप किसी भी बच्चे को बुला लीजिए जिसने क्लासेस अटेंड करी हो, स्पोकन इंग्लिश से क्लासेस अटेंड करी हो। देयर आर लैक्स में बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस अटेंड करी है, बट देयर आर सर्टेन 2% ऑफ दोज जो कि बोल पाते हैं। व्हाट अबाउट 98%? पैसे भी चले गए, ज्ञान भी नहीं मिला, बोल भी नहीं पा रहे हैं। अरे भाई, जब इतना सब कुछ कर लिया तो जो मैं कह रहा हूँ वो भी कर लो, क्या हो जाएगा सर, टाइम खराब हो जाएगा। वैसे तो बड़ा टाइम का यूटिलाइज करते हो आप, वैसे तो लगता है आप पूरे दिन टाइम का यूटिलाइज ही कर रहे हो आप। आई एम बीइंग हार्श, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आप ये चीज़ सोचना बंद कीजिए कि टाइम खराब हो जाएगा। यार टाइम खराब नहीं होगा, नहीं होगा टाइम खराब, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि आप जो मेरे साथ एक एक मिनट इन्वेस्ट करेंगे ना, एक एक मिनट आपका फ्रूटफुल होगा। 1 मिनट यू डिलीवर विथ मी, आपका 1 मिनट जो है, एक मिनट आपका फ्रूटफुल होने वाला है। 1 सेकेंड भी आपका वेस्ट नहीं होगा। आई एम गोइंग टू टीच यू इन सच ए वे कि आप इंग्लिश से बोलना शुरू कर देंगे, डेफिनेटली शुरू कर देंगे, 110% शुरू कर देंगे। बस यू नीड टू बिलीव योर सेल्फ एंड हाँ, स्टॉप बीइंग नर्वस, स्टार्ट फीलिंग एक्साइटेड। ये आज का कोट है, नोट कर लीजिएगा। और लास्ट लेक्चर मैंने आपसे एक ट्रिक क्वेश्चन पूछा था, अभी तक मुझे उसका जवाब नहीं मिला है। आई थिंक सो कि मतलब आप लोग वीडियोस पूरा नहीं देखते हैं या फिर अटेंटिवली नहीं देखते हैं। दिस इज़ वेरी बैड। सी, आई एम डिलीवरिंग फ्रॉम यू एंड यू आर नॉट यूटिलाइजिंग इट। तो 10 साल के बाद क्या होगा कि आप फिर सोच रहे होंगे, काश यार जो कह रहे थे वो कर लिया होता, लाइफ कुछ और होती। सीरियसली लाइफ कुछ और होती। दैट्स ट्रू,
बिकॉज हो सकता है 10 साल के बाद मैं बताने के लिए अवेलेबल रहूँ या ना रहूँ, या आपके पास उतना टाइम रहे या नहीं रहे। ठीक है, अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर आपके पास अभी टाइम है, अभी वक्त है, तो अपने आप को संभालिए, अपने आप को सुधारिए और अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए गाइज, देन आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज के सेशन में हमने देखा 5 गोल्डन स्टेप्स जो आपको कैसे आपको इंग्लिश के इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेंगे। देन देयर आफ्टर मूविंग टू आवर सेशन, मैंने आपको बताया कि ऐसे राइटिंग आपको 2 पेज आपको लिखना है, डेली लिखना है, अपार्ट फ्रॉम दोज, कौन सा? ग्रंथ को छोड़ के। ग्रंथ में किसको कहता हूँ? ग्रंथ में कहता हूँ टेंस के 3 फॉर्म, 3 फॉर्म का 4 पार्ट, 4 पार्ट के 5 टाइप का सेंटेंस, उसको मैं ग्रंथ कहता हूँ। वो ग्रंथ आपको कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यू, दैट मीन्स कंटिन्यू, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन दैट, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत नहीं है। एंड एक चीज़ मैंने आपको बताई कि क्या मैंने बताया आपको? आपसे मैंने बोला स्टॉप फीलिंग नर्वस, स्टार्ट फीलिंग एक्साइटेड। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय एंड होप अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो, जिनको सीखना हो उनके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। स्पोकन के साथ साथ मैं अकाउंटेंसी भी पढ़ा रहा हूँ क्लास 11 के बच्चों के, क्लास 12 के बच्चों को। देन देर आफ्टर कमिंग डेज बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स एंड टैक्सेशन वगैरह में पढ़ाऊँगा बीकॉम लेवल तक के बच्चों को और एमकॉम लेवल तक को। लेवल डजेंट मैटर फॉर मी, तो वो सारी चीज़ें बात की बात है। आपको यहाँ पे स्पोकन से मतलब है, तो अगर आप कोई पढ़ना चाहे तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो, इन दैट केस ओनली। अगर आपको अच्छा लगे देन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। सेशन 2 कंप्लीट करना आपको, टेक केयर, बाय बाय।